السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 11۔ سردار کنٹیلا، تمہارا مجرم اب تمہارے حوالے ہے، جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، کسیارا نے سردار کنٹیلا سے کہا۔ ایک منٹ، مجھے پہلے سردار کنٹیلا سے براہ راست بات کرنے دو، عمران نے کہا۔ نہیں، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سردار کنٹیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ عمران نے چونک کر کسیارا سے پوچھا۔ تمہیں عبرت ناک سزا دینے کا بندوبست کرنے، کسیارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا بندوبست؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، کسیارا نے کہا۔ تو اسی لمحے سردار کنٹیلا واپس اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت لمبا سا خاردار کوڑا تھا۔ میں پہلے تمہارے جسم کی بوٹیاں اڑاؤں گا، پھر تمہیں آگ میں زندہ جلاؤں گا، سردار کنٹیلا نے کوڑے کو ہوا میں پٹکاتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتا دو کہ جب تم انسانی روپ میں ہوتے ہو تو تمہاری سوچ جنوں کی طرح ہوتی ہے یا انسانوں کی طرح؟ عمران نے کہا۔ جب ہم انسانی روپ میں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ بھی انسانوں جیسی ہو جاتی ہے، سردار کنٹیلا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا کوڑے والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ عمران نے کنڈے کا ہک کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کی گرد بندھی ہوئی زنجیر چھن چھن کرتی نیچے زمین پر گری اور اس کے دونوں ہاتھ بھی آزاد ہو گئے۔ یہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ سردار کنٹیلا کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، کسیارا بھی حیرت بھری نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ باہر آیا اور ایک کیپسول فرش پر گر کر پھٹا۔ عمران نے سانس روک لیا تھا۔ دوسرے لمحے عمران کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات پھیل گئے، کیونکہ کیپسول ٹوٹتے ہی کسیارا اور سردار کنٹیلا دونوں ہی لہرا کر نیچے گرے تھے اور ساکت ہو گئے تھے۔ عمران سانس روکے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھیوں کی گردنیں بھی ڈھلک چکی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ انہیں بھی بروقت اس ایکشن کا احساس نہیں ہو سکا اور فوری طور پر سانس نہ روک سکے تھے۔ ویسے عمران اپنے ساتھ جو گیس لے آیا تھا وہ انتہائی زود اثر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ جنات انسانوں کی بنسبت جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے شاید انہیں زیادہ طاقتور گیس کی ضرورت پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ شاید یہ جنات گیس سے بے ہوش نہ ہوں گے۔ گویا سردار اختاش نے سید چراغ شاہ صاحب کا پیغام دیا تھا کہ جنات انسانوں کے روپ میں انسان ہی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے انتہائی زور اثر دوا ساتھ لی تھی۔ زنجیروں کی بندش سے وہ آزاد ہو چکا تھا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا تاکہ سردار کنٹیلا کو اٹھا کر زنجیروں میں جکڑے کہ اچانک معبود کی چھت سے ایک بار پھر پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سایہ عمران پر جھپٹا۔ لیکن اس بار عمران ہوشیار تھا۔ اس نے تیزی سے غوطہ مارا لیکن کوئی سیاہ چیز اس کے چہرے سے چمٹ گئی تھی۔ عمران نے لاشعوری طور پر سانس روک لیا تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے چہرے پر موجود اس سائے کو پکڑنا چاہا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ چہرے کی طرف گیا، ایک بار پھر پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور عمران کا چہرہ صاف ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود عمران کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن چکرا رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن باوجود شدید جدوجہد کے وہ اپنے آپ کو جب سنبھال نہ سکا تو اس نے کوشش کر کے اپنے ذہن کو بلینک کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے سے اس کا چکراتا ہوا ذہن یکجا ہونا شروع ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد جب اس کا ذہن یکجا ہو گیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اب وہ اپنے ذہن پر قابو پا چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سردار کنٹیلا کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے جسم کا انداز ایسا تھا جیسے اسے 4 آدمی اٹھا کر لے جا رہے ہوں۔ عمران ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ سردار کنٹیلا کے جسم غائب ہو گیا۔ عمران یکلخت چونک کر اس کے پیچھے بھاگا لیکن اس کا جسم غائب ہو چکا تھا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے ضروری اسلحہ اور بے ہوش کر دینے والی گیس اور ہوش میں لانے والی اینٹی گیس کی شیشی سب کچھ پہلے ہی جیب میں رکھا ہوا تھا اور کسیارا اور سردار کنٹیلا دونوں نے اسے بے ہوش کرنے کے بعد
बांधते वक्त ये चीजें चेक करने या निकालने की जरूरत ही महसूस ना की थी, इसलिए ये सारा सामान उसकी जेबों में ही था। उसने जेब से एंटी गैस की शीशी निकाली और उसका दहाना सबसे पहले जोआना की नाक से लगाया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और फिर उसे जोसेफ की नाक से लगा दिया। फिर उसने यही कार्रवाई टाइगर के साथ दोहराई और फिर शीशी को बंद करके उसे जेब में डाल लिया। चंद लम्हों में एक एक करके जोआना, जोसेफ और टाइगर तीनों होश में आ गए। तो इमरान ने उन्हें सारे वाकयात बताने के साथ साथ उनकी बंदिशें भी खोलना शुरू कर दी। बॉस, तो क्या जिन भी इस गैस से बेहोश हो जाते हैं? टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जब वो इंसान के रूप में हो। यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो मुझे बेहोश कर देती है, लेकिन इस बार इसका दांव पूरी तरह नहीं चला। अलबत्ता शायद सरदार कंटीला के जिन आकर उसे उठाकर ले गए हैं। इस तरह सरदार कंटीला हाथ से निकल गया है, वरना मैं इसे गोलियों से उड़ाकर मिशन अभी मुकम्मल कर लेता। बहरहाल अब इस कसियारा को उठाकर दीवार से बांध दो, इमरान ने अपने साथियों से कहा। बॉस, ये शैतान का पैरोकार है और हम शैतानी माबूद में हैं, इसलिए इसे जैसे ही होश आया ये शैतानी कुव्वतों को बुला लेगा, जोसेफ ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। ओह वाकई, इस बात का तो मुझे ख्याल ही ना रहा था। फिर क्या किया जाए? इमरान ने कहा। मास्टर, इसे गोली मार दो, ये तो बहरहाल इंसान है, इसका तो खात्मा हो जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, जोआना ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्तौल बाहर निकाल लिया। बॉस, इसकी आमद से हम सरदार कंटीला को दोबारा हासिल कर सकते हैं, अचानक टाइगर ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब? वो कैसे? इमरान ने कहा। बॉस, मैंने जो सोचा है उसके मुताबिक जब सरदार कंटीला जिन होश में नहीं आएगा, इस वक्त तक वो अपने असल रूप में ना आ सकेगा, और चूंकि इसे गैस से बेहोश किया गया है इसलिए वो अब खुद होश में ना आ सकेगा। इसलिए ला मुहाला कंटीला कबीले के दूसरे जिन अपने सरदार के लिए आपके पास आएंगे या फिर उस आदमी से राब्ता करेंगे। ऐसी सूरत में कोई सौदेबाजी हो सकती है, वरना ये मखलूक यहाँ न जाने हमारे साथ क्या सलूक करे। हम शैतानी माबूद में है, टाइगर ने कहा। लेकिन तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि जब तक सरदार कंटीला होश में ना आएगा वो अपने असल रूप में नहीं जा सकता? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आपने खुद ही बताया है कि सरदार कंटीला के बेहोश जिस्म को नामालूम जिन उठाकर ले गए हैं। अगर वो बेहोशी के बावजूद अपने असल रूप में ना जा सकता तो उसे ले जाने वाले जिन उसे इंसानी रूप में उठाकर ले जाते, टाइगर ने कहा। ओह हाँ, वेरी गुड। मेरे जहन को न जाने क्या हो गया है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन जोआना की बात भी सच है। ये शख्स होश में आते ही अपनी शैतानी ताकतों को बुला लेगा। फिर क्या किया जाए? इमरान ने पूछा। बॉस, इसका तरीका मैं बताता हूँ। आप इसके मुंह पर सियाह तस्मा बांध दें, फिर ये शैतानी ताकतों को ना बुला सकेगा और ना बातें कर सकेगा, और बातें भी करता रहेगा, जोसेफ ने कहा। मुंह पर सियाह तस्मा तुम्हारा मतलब है कि उसके दोनों होठों के दरमियान? इमरान ने पूछा। हाँ, जोसेफ ने कहा। तो इमरान को भी याद आ गया कि एक बार पहले भी ब्लैक पावर वाले मिशन में जोसेफ ने इसी तरह एक शैतानी ताकत को बेबस कर दिया था। ठीक है, चलो जल्दी करो, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने झुककर अपने फुल बूट का तस्मा खोला और फिर उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए कसियारा के मुंह पर तस्मा बांध दिया। अब इससे जंजीरों में जकड़ दो, इमरान ने कहा। तो जोसेफ और जोआना ने मिलकर उसे जंजीरों से उसी अंदाज में जकड़ दिया जैसे वो पहले खुद जकड़े हुए थे। अब इसे होश में ले आओ, इमरान ने हाथ में मौजूद एंटी गैस की शीशी जोआना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो जोआना ने शीशी का ढक्कन खोला और फिर उसका दहाना कसियारा की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके उसने उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने शीशी लेकर अपनी जेब में डाल ली। उसी लम्हे कसियारा को होश आना शुरू हो गया और फिर इसने अजीब से अंदाज में कराहते हुए आंखें खोल दी। ये क्या क्या मतलब? कसियारा के मुंह से अजीब से अंदाज में अल्फाज निकले, क्योंकि उसके होठों के दरमियान सियाह तस्मा बंधा हुआ था, इसलिए वो पूरी तरह बोल ना पा रहा था। अब बताओ कसियारा, तुम्हें क्या सजा दी जाए? इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। तो कसियारा के बंधे हुए जिस्म को झटका सा लगा। ये क्या है? ये क्या किया है तुमने? ओह ओह, मैं बंधा हुआ हूँ। मगर मगर कसियारा ने कहा, और इसके साथ ही उसने खामोश होकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये क्या हो गया है? ये मेरी ताकतें, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा? कसियारा ने उलझे हुए लहजे में
उटपटांग बकना शुरू कर दिया। अब ना तुम कोई मंत्र वगैरह पढ़ सकते हो और ना ही अपनी किसी शैतानी ताकत को बुला सकते हो कसियारा। मैंने तुम्हारे मुंह पर ये सियाह तिस्मा बांध दिया है। अब तुम मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हो, इमरान ने जवाब दिया। ओह ओह, मगर मगर ये सब कैसे हो गया? ये मुझे क्या हुआ था? तुम कैसे रिहा हो गए? वो सरदार कंटीला, उसका क्या हुआ? कसियारा ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। अब उसके अल्फाज कदरे वाज़ेह तौर पर समझ में आने लगे थे, क्योंकि तस्मा किसी हद तक खुद ब खुद एडजस्ट हो गया था और इमरान को मालूम था कि आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाएगा और फिर वो उसी तरह बोल सकेगा जैसे बगैर तस्मे के बोलता है। मैंने यहाँ फौरी तौर पर बेहोश कर देने वाली गैस फैला दी थी, जिसकी वजह से तुम भी बेहोश हो गए और सरदार कंटीला भी, लेकिन हमने सांस रोक लिए थे, इसलिए हम बेहोश नहीं हुए। जंजीरें मैं खोल चुका था, इसलिए मैंने अपने साथियों को भी आज़ादी दिला दी। इस दौरान सरदार कंटीला के साथी जिन यहाँ आए और सरदार कंटीला को इसी बेहोशी के आलम में उठा कर ले गए, इमरान ने जवाब दिया। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? कसियारा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो मुझे क्या कह सकते थे? वो तो यहाँ असल रूप में आए थे, इसलिए मुझे सरदार कंटीला का जिस्म नजर आ रहा था, वो नजर नहीं आ रहे थे, इमरान ने जवाब दिया। तो तुम अब क्या चाहते हो? बहरहाल तुम्हारी मौत तो आएगी ही सही। सरदार कंटीला का पूरा कबीला यहाँ मौजूद है, वो जब चाहे तुम्हें हलाक कर देगा, कसियारा ने कहा। तुम्हारा अपने मुतालिक क्या ख्याल है? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। क्या मतलब? कसियारा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम तो इंसान हो और मेरे हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद है। मैं सिर्फ ट्रिगर दबाऊंगा और तुम हलाक हो जाओगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल उसकी तरफ कर दिया। ओह ओह, तो ये बात है, ये लोहा यकीनन तुम्हारे हाथ में ये होगा, इसलिए कंटीला कबीले के जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। काश मैं उसे पहले ही तुम्हारी जेब से निकाल देता, कसियारा ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। लोहा तो इस वक्त भी मेरी जेब में था जब सरदार कंटीला मुझे कोड़े मारने जा रहा था, इमरान ने कहा। उस वक्त ये तुम्हारी जेब में था, हाथ में नहीं था, कसियारा ने कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ये बात उसके लिए वाकई नई थी कि अगर आदमी के हाथ में लोहे की बनी हुई कोई चीज हो तो जिन्नात उसके करीब नहीं आ सकते। हालांकि ये बात ना ही उसे सरदार इख्ताश ने बताई थी और ना ही बाबा मोहम्मद बख्श ने। हक जबकि इमरान के ख्याल के मुताबिक ये वाकई इंतहाई फ़ायदेमंद बात थी, लेकिन अब उसे अपने बचपन का वाक़या याद आ रहा था, जब वो अपनी अम्मा बी के साथ उनके किसी मुलाजिम की किसी अजीज़ की शादी में उनके गांव गए थे और वहाँ इमरान ने देखा था कि दुल्हा के हाथ में लोहे की छुरी पकड़ी हुई थी। इमरान का जहन बचपन से ही पुरतजस्सुस था, इसलिए उसने पूछ लिया तो वहाँ मौजूद एक देहाती बुजुर्ग ने उसे बताया था कि दूल्हे को जिन्नात से खतरा होता है, इसलिए दूल्हा हाथ में छुरी रखता है ताकि जिन्नात उसके करीब ना आ सके। ये बात चूंकि इस वक्त इमरान के पल्ले ना पड़ी थी, इसलिए वो उसे भूल गया था, लेकिन अब कसियारा की बात सुनकर उसे ये बात याद आ गई थी। जोसेफ, तुम्हारी जेब में भी मशीन पिस्तल है, वो जेब से निकाल कर हाथ में ले लो और यहाँ किसी कमरे में हमारा थैला मौजूद होगा, वो उठा लाओ, उसमें 2 मशीन पिस्तल होगी, वो निकाल कर जुआना और टाइगर को भी दे दो ताकि हम सब जिन्नात की कार्रवाई से बच सके, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने जेब से मशीन पिस्तल निकाल कर हाथ में पकड़ा और तेजी से उस कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके दूसरे हाथ में सियाह रंग का थैला मौजूद था। उसने थैले में से 2 मशीन पिस्तल निकाल कर एक टाइगर को और दूसरा जुआना के हाथ में दे दिया। उन्हें जेब में ना डालना, हाथ में ही पकड़े रखना, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिया। अब जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अब हम इत्मीनान से यहाँ से वापस जा सकते हैं, इसलिए अब उस कसियारा को जिंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों न इसे गोली मार दी जाए, इमरान ने जानबूझकर अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, तुम जो चाहते हो मैं करूँगा, मुझे मत मारो, कसियारा ने चीखते हुए कहा और फिर बात खत्म करके उसकी नज़रें यखलख्त इमरान के अकब की तरफ जमसी गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी को देख रहा हो। इमरान ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी न था। सुनो सुनो, सरदार कंटीला का नायब काचू यहाँ आया है। वो इंसानी रूप में नहीं है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी निगाहें उसका मखसूस हल्का देख रही है। उसने मुझे बताया है कि सरदार कंटीला अपने असली रूप में नहीं आ रहा और ना ही होश में आ रहा है। हालांकि जिन्नात हकीमों ने इसे
ہوش میں لانے کی بے حد کوششیں کی ہے، وہ یہاں اس لیے آیا ہے تاکہ میں تم سے اسے ہوش میں لے آنے کی بات کروں۔ سنو، میں سردار کنٹیلا کی طرف سے حلف دیتا ہوں کہ وہ اخنوق قبیلے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کسیارا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب تک ہم نہ چاہیں وہ ہوش میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اب قیامت تک اسی طرح بے ہوش ہی رہے گا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا وہ اپنے اصل روپ میں بھی نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے چند لمحوں میں ہوش میں لا سکتے ہیں عمران، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہوش میں آ کر دوبارہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے گا اور وہ شیطان کا پیروکار ہے، اس لیے مجھے تمہارے یا اس کے کسی حلف پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ بات بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک سردار کنٹیلا فنا نہیں ہو جاتا وہی اس قبیلے کا سردار رہے گا، اور جب تک سردار کنٹیلا زندہ ہے تب تک قبیلے کا کوئی اور جن اس کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات ہمارے فائدے میں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، شیطان جب چاہے اسے ہوش میں لائے بغیر اصل روپ میں لا سکتا ہے۔ سنو، میں تمہیں ہر قسم کا حلف دلا سکتا ہوں، تم اسے ہوش میں لے آؤ، کسیارا نے کہا۔ ایک صورت میں یہ سودا ہو سکتا ہے کہ ہم سردار کنٹیلا کو اسی حالت میں ساتھ لے جائیں جب ہم کنٹیلا قبیلے کی حدود سے باہر نکل جائیں گے، تو پھر ہم اسے ہوش میں لے آئیں گے، عمران نے کہا۔ نائب کاچو کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ شرط منظور ہے، کسیارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے یہاں منگواؤ اور ہمارے ساتھ ساتھ اسے اٹھا کر لے چلو، عمران نے کہا۔ باس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ٹائیگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو، عمران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تو ٹائیگر فقرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ نائب کاچو کہہ رہا ہے کہ وہ سردار کنٹیلا کو قبیلے کی حدود والے ستون کے باہر پہنچا دیتے ہیں، تم وہاں پہنچ جاؤ، کسیارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، لیکن کسیارا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، اور یہ سن لو کہ اگر کنٹیلا قبیلے کے کسی جن نے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو پھر نہ تم زندہ رہو گے اور نہ ہی کبھی سردار کنٹیلا ہوش میں آ سکے گا، عمران نے کہا۔ کوئی شرارت نہیں ہوگی، کسیارا نے جواب دیا۔ جوزف، تھیلے میں سے کلپ ہتھکڑی نکال کر کسیارا کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے باندھ دو، پھر اسے کھول دینا، اور ٹائیگر، تم تھیلے میں سے وائرلیس چارجر بم نکال کر جاتے وقت اس کمرے کے کونے میں رکھ دینا اور اسے آن کر دینا، عمران نے پاکستانی زبان میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا، جبکہ جوزف عمران کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کسیارا اور اپنے ساتھیوں کے سمیت اس معبد سے باہر آ گیا جبکہ ٹائیگر تھیلے سمیت پیچھے تھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی باہر آ گیا۔ اب تم ہماری رہنمائی کرو گے، عمران نے کسیارا سے کہا تو کسیارا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ کسیارا کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، البتہ مشین پستل سب نے بدستور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ کہاں تک کنٹیلا قبیلے کی حدود ہے؟ عمران نے کسیارا سے پوچھا۔ یہاں سے قریب ہی ہے، وہاں ایک ستون موجود ہے، کسیارا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف، السلام علیکم، سردار اختاش نے جو انسانی روپ میں تھا بابا محمد بخش کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بابا محمد بخش نے سر اٹھاتے ہوئے سردار اختاش کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ اوہ، تم اور یہاں؟ بابا محمد بخش نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے بابا جی، آپ مجھے فوری وقت دے تو آپ کی مہربانی ہوگی، سردار اختاش نے کہا تو بابا محمد بخش اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے معذرت کی اور پھر وہ وہاں سے سردار اختاش کو لے کر علیحدہ کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے کہ تمہیں خود اس روپ میں یہاں آنا پڑا ہے؟ بابا محمد بخش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں، میں ایک بار عمران صاحب کے کہنے پر ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے بات چیت کی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میں وہاں نہ آؤں، اس لیے میں اب وہاں نہیں جا سکتا اور نہ ان سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہے کہ جنات کے معاملات سے آپ بہرحال واقف ہیں، اور عمران صاحب نے بھی آپ سے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور وہ آپ سے مل بھی چکے ہیں، اس لیے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، سردار اختاش نے کہا۔ ہاں، وہ نوجوان میرے پاس آیا تھا، لیکن کیا ہوا ہے؟ بابا محمد بخش نے پوچھا۔ شیطان کے پیروکار قبیلہ کنٹیلا کے سردار جن سردار کنٹیلا کو فنا کرنے کا کام سید چراغ شاہ صاحب نے عمران کے ذمے لگایا ہوا ہے، لیکن عمران صاحب اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی شیطانی قوت کے حامل شخص الخیس کو ہلاک کر دیا ہے۔ سردار کنٹیلا کا کچھ نہیں بگڑا،
शैतान ने अलकीस के बाद ये काम एक और शैतानी ताकत कसियारा के जिम्मे लगा दिया। कसियारा ने इमरान के 2 साथियों को अगवा करके कंटीला कबीले की हदूद में वाक़ शैतानी माबूद में कैद कर दिया। इमरान साहब अपने एक साथी के साथ वहां गए, लेकिन अभी मुझे इत्तला मिली है कि इमरान साहब वहां बेबस हो गए हैं और अब सरदार कंटीला उन्हें इबरतनाक मौत मारने की कोशिश कर रहा है। सरदार अख्ताश ने कहा, ओह, ये तो वाकई बुरी खबर है, लेकिन इस सिलसिले में तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। क्या आप कोई मदद नहीं कर सकते? सरदार अख्ताश ने पूछा। कैसी मदद और किस तरह? बाबा मोहम्मद बख्श ने चौंक कर पूछा। जिस किस्म की भी आप कर सके। मेरा मकसद है कि इमरान साहब को उस माबूद और सरदार कंटीला के कबीले की हदूद से किसी तरह बाहर निकाल लिया जाए। सरदार अख्ताश ने कहा, तुम अख्ताश कबीले के सरदार हो और फिर अखनूक कबीले के सरपंच भी हो। अगर तुम इसकी मदद नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। हम शैतान कबीले की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, लेकिन आपके पास तो रूहानी ताकतें हैं। आप रूहानी ताकतों की मदद से कुछ करिए ना। सरदार अख्ताश ने कहा। नहीं, मेरे पास ऐसी ताकतें नहीं हैं। अलबत्ता मैं रूहानी तौर पर सैयद चिराग शाह साहब से राब्ता कर सकता हूँ। वो मेरे मुर्शिद भी हैं। बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। ओह, अगर ऐसा है तो ज़रूर राब्ता करे और उनकी खिदमत में ये हालात अर्ज करे। मुझे यकीन है कि वो उसे बचा लेंगे। सरदार अख्ताश ने कहा। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी अपने ख़ास कमरे में जाकर मुर्शिद से रूहानी राब्ता करके वापस आता हूँ। वह मोहम्मद बख्श ने कहा और उठकर कमरे के एक दरवाजे से बाहर की तरफ चले गए। सरदार अख्ताश कुर्सी पर खामोशी से बैठा रहा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद बाबा मोहम्मद बख्श वापस आए तो सरदार अख्ताश ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या हुआ? सरदार अख्ताश ने बड़े बेचैन लहजे में पूछा। तुम उसके लिए बहुत परेशान हो, हालांकि जिन्नात इंसानों के बारे में कभी इस कदर परेशान नहीं होते। बाबा मोहम्मद बख्श कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोले। एक तो वह हमारे कबीले के लिए काम कर रहा है, दूसरा मुझे सैयद चिराग शाह साहब ने बताया था कि इमरान साहब पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा सरमाया है। सैयद चिराग शाह साहब वैसे भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने खुसूसी तौर पर इमरान साहब को इसके काम के लिए तैयार किया था। इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन आपने क्या किया है? क्या आपका सैयद चिराग शाह साहब से राब्ता हुआ है? क्या कहा है उन्होंने? सरदार इख्ताश ने बेचैन होकर पूछा। हाँ हाँ, मेरा राब्ता हो गया है। मैंने तुम्हारे बताए हुए हालात उनकी खिदमत में अर्ज किए हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि इमरान के लिए किसी तशवीश की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। दूसरी बात, उन्होंने ये फरमाई है कि सरदार अख्ताश को पैगाम दे दिया जाए कि वो इमरान और उसके साथियों के लिए परेशान ना हुआ करे। उन्होंने फरमाया है कि हमने सोच समझकर इमरान का इस काम के लिए इंतखाब किया है और हमें यकीन है कि इमरान अपनी जहानत और कारकर्दगी की बिना पर मुकम्मल काम कर देगा और कामयाब रहेगा। बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। ओह, फिर ठीक है, बेहद शुक्रिया बाबा। अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। अब मुझे इजाज़त दे। सरदार अख्ताश ने मुतमईन लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। वैसे मेरी एक गुजारिश है कि जब इमरान अपने काम में कामयाब हो जाए तो मुझे उसके पास ले जाए। मैं उससे मज़ीद बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मुर्शिद सैयद चिराग शाह साहब ने उसके बारे में जिस इत्मीनान का इजहार किया है, मैं इससे बेहद मुतासिर हूँ। बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। ठीक है जनाब, अब इजाज़त दें। सरदार अख्ताश ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तो बाबा मोहम्मद बख्श हकीम ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर वो भी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ इमरान अपने साथियों समेत सहरा में चलता हुआ कसियारा की रहनुमाई में आगे बढ़ता रहा और फिर उन्हें दूर से रेत के दरमियान एक ऊंचा संगी सुतून नजर आने लग गया। इस सुतून पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ना ही तहरीर पढ़ी जा रही थी और ना इमरान को ये समझ आ रहा था। ये सुतून हदूद है? इमरान ने कसियारा से पूछा। हाँ, इस सुतून के अंदर कंटीला कबीले की हदूद है, दूसरी तरफ नहीं है, कसियारा ने जवाब दिया। उस सुतून पर क्या लिखा हुआ है? इमरान ने पूछा। यह जिन्नाती ज़बान है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से कंटीला कबीले की हदूद शुरू हो रही है, इसलिए जिन्नात बगैर सरदार की इजाज़त के इस हदूद में दाखिल ना हो, वरना उन्हें सज़ा के तौर पर फना कर दिया जाएगा। कसियारा ने जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो इस सुतून के पास पहुंच गए। इमरान ने देखा कि सरदार कंटीला सुतून की अंदरूनी रेत पर पड़ा हुआ है। यहाँ
क्या यहाँ कंटीला कबीले के जिन्नात मौजूद हैं? इमरान ने कस्यारा से पूछा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आ सकते, कस्यारा ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो कहा था कि सरदार कंटीला का जिस्म कबीले की हदूद से बाहर होना चाहिए, लेकिन ये तो अंदर पड़ा हुआ है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका जिस्म उठाकर हदूद से बाहर रख दो, कस्यारा ने ऊंची आवाज में कहा। तो दूसरे ही लम्हे सरदार कंटीला का जिस्म हवा में उठता हुआ दिखाई दिया, और फिर वो जैसे हवा में तीरता हुआ सुतून की दूसरी तरफ रेत पर टिक गया। जिस माबूद से हम आए हैं वहां भी जिन्नात मौजूद हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, ये मुकद्दस माबूद है, इसमें सिवाय खुसूसी इजाजत के कोई दाखिल नहीं हो सकता, कस्यारा ने जवाब दिया। किसकी इजाजत? इमरान ने चौंक कर पूछा। माबूद के बड़े पुजारी की, कस्यार ने कहा। वो पुजारी हमें तो नजर नहीं आया, क्या वो भी जिन है? इमरान ने पूछा। हाँ, वो भी जिन है, उसे तुम्हारी वजह से हटा दिया गया था, कसियारा ने जवाब दिया। उस माबूद को क्यों कायम रखा गया है? वहाँ क्या होता है? इमरान ने पूछा। वहाँ साल में एक बार तमाम कंटीला कबीले के जिन्नात और पूरी दुनिया में फैले हुए शैतान के पैरोकार जिन्नात इकट्ठे होकर शैतान की पूजा करते हैं और उससे अहद करते हैं कि वो उसके वफादार रहेंगे, कसियारा ने जवाब देते हुए कहा। ये काम वो माबूद के बाहर भी तो कर सकते हैं, इमरान ने कहा। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि माबूद की वजह से उन्हें खास शैतानी ताकतें मिलती है, कसियारा ने जवाब दिया। टाइगर, वो डी चार्जर कहाँ है? इमरान ने टाइगर की तरफ मुड़ते हुए कहा। तो टाइगर ने जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो इस पर एक जर्द रंग का बल्ब तेजी से जलने लगा। शैतान की पूजा का शैतानी मरकज तो पहले ही खत्म कर दूं, फिर बात होगी, इमरान ने कसियारा से कहा। और फिर उससे पहले कि कसियारा कुछ कहता, इमरान ने दूसरा बटन भी प्रेस कर दिया। आले पर सुर्ख रंग का एक बल्ब जला, धमाके से जला और बुझ गया। इसके साथ ही वो जर्द रंग का बल्ब भी बुझ गया और दूसरे ही लम्हे दूर सहरा में एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और रेत के बादल आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दिए। ये क्या हो गया है? कसियारा ने हैरत से चीखते हुए कहा। उयुग सितारे का माबूद तबाह हो गया है, इमरान ने बड़े इत्मीनान लहजे में कहा। तो कसियारा पागलों के से अंदाज में चीखता हुआ वापस सहरा में उस तरफ को दौड़ने लगा जिधर से वो आए थे। उसके दोनों हाथ उसके अकब में बंधे हुए थे। इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल सीधा किया, लेकिन फिर उसने हाथ झुका लिया। इसी लम्हे कसियारा एक टीले की ओट में जाकर उनकी नजरों से गायब हो गया। बॉस, आपने इस शैतान को गोली नहीं मारी? जोसेफ ने कहा। मैंने सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि एक तो बंधा हुआ है, दूसरा उसकी मेरी तरफ पुश्त थी, और मुझे किसी बंधे हुए बेबस इंसान आदमी पर और भी उसकी पुश्त पर फायर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इमरान ने जवाब दिया। बॉस, ये शैतान का पैरोकार है, आप उस पर रहम क्यों करते हैं? जोसेफ ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। तो जोसेफ होठ भींचकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक एक टीले की ओट से कसियारा वापस आता हुआ नजर आया। लेकिन इमरान ने देखा कि उसके दोनों हाथ खुले हुए थे, उसके कांधे झुके हुए थे और चेहरे पर इंतहाई मर्दनी छाई हुई थी। तुमने क्या गजब किया? तुमने शैतान का सबसे बड़ा माबूद तबाह कर दिया, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए अब मुझे शैतान खौफनाक सजा देगा। काश तुम ऐसा ना करते, तुमने मेरी तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया, मुझे भी मार डालो, कसियारे ने करीब आकर रोते हुए कहा। तुम इंसान होकर शैतान से डरते हो? शैतान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? इमरान ने कहा। तो कसियारा बेइख्तियार उछल पड़ा। वो बड़ी ताकतों का मालिक है, वो मुझे हलाक कर देगा, वो मुझे इबरतनाक सजा देगा, कसारा ने जैसे लाशऊरी अंदाज में बोलते हुए कहा। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है, कसियारा। हमारा ईमान है कि जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं भी मुसलमान हूँ, कसियारा ने यकलख्त कहना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे लम्हे वो हवा में उछला और फिर एक धमके से नीचे गिरा, और उसके साथ ही उसका जिस्म इस तरह तुड़ने मुड़ने लग गया जैसे चारों तरफ से उस पर लाठियां बरसाई जा रही हो। उसके हलक से निकलने वाली चीखों से सहरा का वो हिस्सा गूंज उठा था। इमरान ये सूरत हाल देखकर तेजी से आगे बढ़ा। उसने कसियारा का हाथ पकड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे कसियारा ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्तल झपट लिया और उछलकर एक तरफ हट गया।
हा हा हा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। कसियारा ने भरपूर कहा लगाते हुए कहा। इसकी हालत अब बिल्कुल ठीक थी। तुम तो ड्रामा कर रहे थे, इमरान ने होठ भींचते हुए कहा। हा हा हा, ये ड्रामा नहीं, शैतान के दुश्मन का खात्मा है, कसियारा ने कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्तौल का रुख इमरान की तरफ किया ही था कि यखलख्त तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही वो यखलख्त चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा, और उसके हाथ से मशीन पिस्तौल निकल गया था जिसे इमरान ने हाथ उठा लिया। कसियारा का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ये फायरिंग जोसेफ ने की थी। ये शैतान था बॉस, मुजस्सम शैतान। इसलिए मैंने इसे मार दिया है, जोसेफ ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। हाँ, ये वाकई शैतान का पैरोकार था। मैं तो समझा था कि शायद ये शैतान से बचने के लिए मुसलमान होना चाहता है, इसलिए मैं उसकी तरफ मदद करना चाहता था। लेकिन ये वाकई ड्रामा कर रहा था। लेकिन तुमने जल्दी की। बहरहाल ठीक है, इमरान ने कहा और तेजी से वापस सुतून की तरफ मुड़ गया। अचानक एक आदमी नमूदार हुआ जिसका कद जोसेफ और जोआना से भी लंबा था। जिस्म दुबला पतला था और जिस्म की मुनासिबत से उसका सर काफी बड़ा था। अलबत्ता उसकी आंखें छोटी थी, वो सर से गंजा था, हत्ता कि उसके चेहरे पर भी भौं और पलकों तक के बाल भी न थे। ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा सा सुर्ख रंग का राड हो। हमारे सरदार को छोड़ दो, हम इसके बदले तुम्हें माल और दौलत दे सकते हैं, इस आदमी ने अजीब सी चीखती हुई आवाज में इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। मेरा नाम काचू है और मैं सरदार कंटीला का नायब हूँ। मैंने तुम्हारे वादे के मुताबिक सरदार कंटीला को यहाँ ला कर रख दिया है। कसियारा ने मुझे कहा था कि वो तुम्हें हलाक कर देगा, लेकिन इसकी बजाय तुमने उसे हलाक कर दिया है, इसलिए हम तुमसे खौफजदा हो गए हैं। तुम हमारे सरदार को आज़ाद कर दो, उसे होश में ले आओ, काचू ने कहा। तुम और तुम्हारा सरदार सब शैतान के पैरोकार है, इसलिए मैं तुम्हारे सरदार को नहीं छोड़ सकता, और मैं उसे इसी हालत में उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा और उससे सरदार अख्ताश के हवाले कर दूंगा। फिर सरदार अख्ताश जाने और तुम्हारा कंटीला, इमरान ने जवाब दिया। तुम ये लोहे के आग बरसाने वाले हथियार अपनी जेबों में डाल लो ताकि तुमसे तफसीली बात हो सके, काचू ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम भी कसियारा की तरह मुझे फरेब देना चाहते हो, लेकिन ये बता दूं कि उसके बावजूद तुम शैतान के पैरोकार हमारे करीब ना आ सकोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हम जिन्नों के दरमियान क्यों आए हो? हमने तुम इंसानों को तो कुछ नहीं किया है। ये तो कंटीला कबीले और अखनूक कबीले के दरमियान की जंग है। ये दो जिन्नात कबीलों के दरमियान की जंग है। ये तो सरदार अख्ताश ने ज्यादती की है कि तुम इंसानों को दरमियान में ले आया है। तुम हट जाओ, हम खुद सरदार अख्ताश और उसके कबीले से मुकाबला कर लेंगे, काचू ने कहा। तुम्हें गलतफहमी है काचू, तुम शायद अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हो, इसलिए तुमने अपनी तरफ से ये बात की है। ये दो जिन्नात कबीलों के दरमियान की जंग नहीं है, खैर और शर के दरमियान की जंग है। अगर वाकई ये दो जिन्नात कबीलों के दरमियान जंग होती तो मैं इसमें मदाखलत ना करता और ना मुझे इसका हुक्म दिया जाता। लेकिन ये खैर और शर की जंग है और तुम और तुम्हारा सरदार और तुम्हारा कबीला शर के नुमाइंदे हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इंसानों को दौलत चाहिए, बताओ जितनी दौलत चाहिए तुम चाहो, जितनी भी दौलत तुम चाहो तुम्हें हम दे सकते हैं, तुम्हें वो दौलत मिल जाएगी। तुम दरमियान से हट जाओ, काचू ने कहा। तुम्हें गलतफहमी है काचू, ये ज़रूरी नहीं कि सब इंसान ही दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। देखो, तुम किसी सरदार जिनको हलाक नहीं कर सकते, इसलिए तुम सरदार कंटीला को हलाक कर दो। सरदार कंटीला को तो हलाक कर ही नहीं सकते, इसलिए तुम कब तक इसे बेहोश रखोगे, काचू ने पैतरा बदलते हुए कहा। मैं वाकई बड़े तवील अरसे तक इस मसले पर परेशान रहा हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम है कि जब तक तुम इंसान के रूप में हो तब तक तुम्हें बिल्कुल उसी तरह फना किया जा सकता है जैसे कि इंसानों को हलाक किया जाता है। इसलिए अब मैं अगर तुम्हारे सरदार कंटीला के जिस्म में मशीन पिस्तल की गोलियां उतार दूं तो ये बिल्कुल उसी तरह फना हो जाएगा जिस तरह मेरे साथी की गोलियों से कसियारा हलाक हुआ है, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हें जिसने भी ये बात बताई है गलत बताई है, जिन्नात को इंसानों की तरह फना नहीं किया जा सकता। तुम्हारी और हमारी ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो, मैं इस वक्त इंसान के रूप में हूँ, तुम बेशक मुझ पर गोलियां चला कर देख लो, काचू ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा तुम असल रूप में चले जाओगे। इस तरह गोली ज़ाय हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा सरदार
बंधा होने की वजह से असल रूप में नहीं जा सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सरदार को बेशक बंधा रहने दो, लेकिन उसे होश में तो ले आओ ताकि हम उससे बात तो कर सके। हो सकता है कि हम उससे वादा ले लें कि वो आइंदा सरदार अख्ताश और उसके कबीले के खिलाफ काम ना करे। काचू ने कहा, हाँ ये बात हो सकती है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने ज्वाना की तरफ मुड़ के देखा। ज्वाना, इसकी नाक से एंटी गैस की शीशी लगा दो। इमरान ने जेब से वो बोतल निकाली और ज्वाना की तरफ बढ़ाया। ज्वाना ने उसका ढक्कन खोला और फिर झुककर उसने शीशी को सरदार कंटीला की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद जब सरदार कंटीला के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो ज्वाना ने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे वापस जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद सरदार कंटीला ने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी उसकी खून कबूतर की तरह सुर्ख आंखें इमरान पर जमी हुई थी। तुम मेरे दुश्मन, तुमने मेरे साथ क्या किया था? वो माबूद, वो कसियारा, सरदार कंटीला ने कहा, और इसके साथ ही उसकी नजरें काचू पर जम गई और वो खामोश हो गया। इमरान ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। अच्छा, तो तुमने कसियारा को हलाक कर दिया और शैतान के माबूद को तबाह कर दिया, और तुम समझ रहे हो कि तुम सरदार कंटीला को भी हलाक कर दोगे? अचानक सरदार कंटीला ने कहा, और उसके साथ ही उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सी यकलख्त नीचे गिर गई और दूसरे लम्हे पलक झपकने से पहले ही वो गायब हो गया। इमरान तेजी से काचू की तरफ मुड़ा, लेकिन काचू भी गायब हो गया। ये रस्सी किस तरह खुल गई है? इमरान ने आगे बढ़कर रस्सी उठाते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, इसकी गांठ बाकायदा खोली गई है। मेरा ख्याल है कि ये काम नजर ना आने वाले जिन्नात का है। वो अपने सरदार को होश में तो नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने ये गेम खेली है। टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ वाकई, बहरहाल ठीक है, मैं बेबस और बेहोश और पर फायर नहीं करना चाहता था। आओ अब हम वापस चलते हैं, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या वो सरदार कंटीला को बिना मारे ही चला जाएगा? अब ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।